chat box. Okay, thank you. Recording has started. Kindly mark your attendance. We'll go to the uh, directly presentation and we'll start with today's lecture. So I go to presentation part. This is today's lecture, and this is the acknowledgement. It's lecture 8. Now today what we are going to cover is we are going to talk on some general topics, and then we will take few constellations like Pisces, Astrinus, Aquarius, and then details of few messier objects in those particular things we'll see. And then obviously in case time permits, we'll go ahead with this general topics first. Sun will cover in last. And some terminologies we will try to see so that you will get acquainted with the words in astronomy. So now just give me a second. You can by this time you can go through this Arecibo Observatory details. Okay. As I was telling you that we will be normally going ahead with some specific topics, then some general terms and conditions which we will be referring in astronomy, and then few constellations, and then few details in of those constellations, including some prominent stars, then messier objects. Your all questions will appear in chat box only. Nobody switch on mic. Now I am covering today this particular topic. I don't know how many of you know about this particular observatory. Anybody knows about this Arecibo Observatory? Just put in the chat box so that I will continue further. In case you don't know, you can put no, don't know. Okay, Shlok knows. Nobody else knows. Okay, so we'll just cover up this very fast. And this main reason is why I'm putting this here is this Arecibo Observatory, which was commissioned in 1963, was supposed to get decommissioned due to some damages in the structure, but met with some accident and actually it failed. So we will cover up this very important what you can say observatory, come radio telescope, come some radar telescope, which was established in 1960. Certain things we will just cover up. I will not read through, but certain things are important, like Arecibo Observatory, also known as the National Astronomy and Ionosphere Center, NAIC, is an observatory in Arecibo, Puerto Rico. Okay, this Puerto Rico is basically located just below of United States of America. There is one belt. Then we have Cuba, and below Cuba on one island, this particular Puerto Rico, which is actually covered or governed by the US government. And this particular Puerto Rico's Arecibo Observatory was actually owned by US National Science Foundation. It has got diameter of 1,000 feet, and that particular radio transmitters receiver steerable, basically it's approximately 492 feet above dish. Its construction completed in 1963, and it's were one of the world's largest single aperture telescope for 53 years, surpassed by Chinese
FAST, that is 500-meter aperture spherical telescope, in July 2016. So you can very easily understand. Just let me know which is the world's biggest radio telescope. Just put in chat box. Anybody knows? Put in chat box as fast as possible. By that time, we'll proceed further. That is basically GMRT, Giant Meter Wave Radio Telescope, located in Pune near Narayangaon, Khodad. Okay, but that is not single appearance. Okay. Sorry, I got some call. I'll decline it. A second. This will keep happening. Kindly accept apologies. All such things. Give me a second. So, sir, I don't know. Normally, your problem, many of you have simple problem that you don't want to study and all. Okay, you feel that if it is paid by parents, very good. If it is not paid and no requirement to pay, then there is no need to study. Such type of approaches are always very bad. Like I'm seeing that nobody submitted homework except Guruvesh, that is Mr. Badgujar, and he is the youngest fellow in our class. And then some days back, Avirat tried, but others are feeling as if it is not their duty or they are not interested in at all. Okay, तो ये सब चीजें जो है ये सब फ्री एजुकेशन का नतीजा है. आप लोग को कोई इंटरेस्ट है नहीं. ऐसे भी कितने बच्चे हैं यूपीएससी के क्लास में जिनको फीस देने में कोई इंटरेस्ट नहीं. ओके, जैसे ये ठक्कर है. देन वी हैव सम पीपल जो बोलते रहते हैं बट फीस देते नहीं. ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी के क्लास की बात कर रहा हूँ. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं. तो ये जो तरीका है ना कि फ्री में मिल रहा है तो लो, पैसे देने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है तो भाई फ्री में मिले जैसे भी मिले पढ़ना तो है. होमवर्क मेरे लिए नहीं कर रहे हो आप लोग, अपने लिए कर. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इफ आई डोंट रिसीव होमवर्क, you will be removed, and this is applicable to at least students below 40 years. 40 के आगे जो elderly people है उनको मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि they are doing it as a hobby part of it. but छोटे लोगों के लिए ये सब करना ही होगा. So we talked about the special feature of the Arecibo Observatory and when it got erected and installed and commissioned. Then very important part is that though the diameter of this particular hemispherical dome is approximately 1000 feet, that is 305 meter, its radius of curvature was approximately 869, and the surface was made up of the aluminum panels, approximately 38,778. Each is 3 feet by 7 feet, means 1 by 2 feet approximately. And the ground beneath was still supported or used for the shade tolerant vegetation. Now, this particular observatory includes some other facilities also, which will be opened once that particular accident or damage which has happened on the 1st of December is accessed. Anyway, now the theoretical part is over. We'll take, if you have any questions, doubts, I'll keep observing that. ये हबल नहीं है, हबल नहीं है, प्रद्युम्न वगैरह छोटे हैं, at least they are trying, that is good. So this is something interesting thing. This is that particular 1000 feet diameter. That particular sloping part is the curvature of the spherical dome, which is approximately 870 something. We have seen it is 869 feet. And then this is that particular 900 ton receiver part assembly, which is connected to it by one. Sorry, I'll just make it. This is that one pole which supports. This is second. This is third. This is that cable structure, and this particular assembly which is located at that particular height is approximately 900 ton, means 900,000 kgs, that is 9 lakh kgs. Okay, now this all things are very important because what you are seeing, this beautiful structure there since 1963 has met with its age, and now it has seen the last damage, that is on the
December 1st. So these are the photographs after damage. These are the original photographs. And as you can see, very important thing is this particular is original before accident. That is what they have seen, shown that particular arrowhead is pointing towards that particular receiver, radio signal receiver. And this is where it has been fallen. Okay. So this is that particular damaged one after the accident. Now, this is the original location. You can see where it is located in one some very important island, and that island is also quite small. And that in that particularly, this is the located near Arecibo city. So this is the distance photograph image. Now we go into the little bit more extra details that though this particular completion of Arecibo Observatory was 1963, it was used for the radar astronomy and radio astronomy. Now, when I keep telling you all these things, now, it's your duty that you will go through these details. Like I said, Falana Falana observatory met with some mechanical damage because of its age. Then videos, everything available on internet. If you make point in your notebook, then after today's lecture is over, you got some own assignment, not home assignment. It's an own assignment defined by you. It will go through the video to see how this particular observatory got damaged because of its age. It was supposed to be decommissioned. This particular telescope was used for radar astronomy. What is radar astronomy? Radar astronomy works on a principle of reflection of the microwave. What is microwaves? Microwaves are the wavefronts or wavelengths of the electromagnetic spectrum which lies in the mm range. What is radio astronomy? Radio astronomy is the next band of electromagnetic radiation which works in the meter length or wavelength of the electromagnetic spectrum, and that is radio astronomy. Okay. Now, search for extraterrestrial intelligence, SETI. Yes, SETI is a very, very important project, and those who are interested in understanding this alien part of search, OXMA project, so such things were actually tried to be done with this particular Arecibo observatory. It was also used by NASA for the near Earth object detection. What is near Earth object detection? Near NEO are the objects which are coming near Earth and can be very, very damaging for Earth in case they enter the Earth orbit and hit the Earth surface. So such things are also searched through Arecibo observatory. Now, later date, after some time, the funding was reduced, and because of that and decommissioning and safety concerns, so many things. And in August 2020 and in November 2020, the structural integrity support for the suspended platform got damaged. And then it was thought that it will be checked or accessed for the how much is damaged, and then it will go for the decommissioning instead of going for the improvisation. But in between, the remaining support cables from one tower failed around 7:56 a.m. local time on the December 1st, that is just 16 days back, and crashing the receiver platform to fall into the dish, collapsing the complete telescope. Now please check, go through its video footage on internet. That is personal assignment given to you. Those who have joined late, just for your information, this is the original Arecibo observatory. This is the damaged one. This damage happened on the 1st December 2020. And now we go into the what all things which we or scientific community could achieve because of the Arecibo observatory. There are a lot of things which we are going to enlist, but one discovery led to the Nobel Prize winning in 1993, though the discovery was made in 1970. So we'll list out what are the various discoveries, amazing discoveries, which were carried out with the help of Arecibo Observatory located in Puerto Rico nearby Cuba. Okay. Arecibo's first significant discovery was revealing that Mercury only takes 59 days to complete its orbit around Sun. Initially, it was assumed that it's 88 days, but later on, by using the radio telescope in Arecibo Observatory, researchers could invalidate previous theories
and discovered that Mercury takes only 59 days to complete its orbit around Sun. Now, Mercury is not tidally long the way Moon is tidally long. It does turn and it completes 3 rotation in every 2 orbits. मतलब 2 बार जब वो सन के चक्कर लगाता है तो 3 बार वो खुद के चक्कर लगाता है. Now this is something factual information which need not be remembered, but in case you remember it, अगर आप ये सब चीज याद रखोगे तो ये आपके भविष्य के एस्ट्रोनॉमी के उससे रिलेटेड इंटरेस्ट परस्यू करने में, उससे रिलेटेड एग्जाम देने में, एनटीएससी जैसी एग्जाम देने में आपको बहुत मदद करेगा if you are below 15 years or you are below 10th standard. So this is the first discovery. Now we go to the Nobel Prize discovery. The Nobel Prize winning discovery of the first ever binary pulsar in 1974. Now, when we go for the structure on evolution of the star, we'll try to learn everything about stars. But today we will just point out that there is something called pulsar, which keeps sending radio pulses through its axis, now poles basically, and these pulses were received by humanity long back, but there is binary, means 2 pulsars going around each other, was invented in 1974 with the help of Arecibo Observatory, and this duo, what is that? Arecibo, Joseph Taylor and Russell Hulse in 1974, highly magnetized rotating star orbiting another, that is the first binary pulsar they found out, and in 1990 the discovery was crucial for testing the theories of gravity and led to both the scientists winning the Nobel Prize in 1990. अभी जो लोग बिल्कुल मेहनत ही नहीं करना चाहते, ओके, जैसे I said today that I will remove all the students who are not doing homework. Then some people are sending homework as if they are doing some favor on me. Okay, and that to my personal account. Okay, so anybody sends these things to my personal account will also be removed from the class. So you have to understand here that somebody did some long invention, some very dedicated invention of outcome of his very dedicated work in 74, and they got Nobel Prize in 90. Subramaniam Chandrasekhar did great work in somewhere around 1940s, 50s, and he got Nobel Prize in 1980. So this should make you clear that if you don't put hard work in your young days, doing simple homework seriously and sincerely, then your father's money and your unnecessary ego and unnecessary over smartness will not help you much in life. Okay, so now let's go to the third. Discovery of the first planet outside the solar system in 1992. Human beings were very curious and they were interested in knowing if Earth, solar system has got some planets had gone through satellites, natural satellites, then do other star system has got some planets. These efforts were supported by Arecibo Observatory, and we got the results of finding some systems very closer to us in 1992. And the particular finding was when Arecibo Observatory was able to capture the very first exoplanet. In subsequent year, it was able to discover the entire planetary system around pulsar. So this was again all going around pulsar because pulsar are the good radio source. Okay. What is the fourth discovery? Creation of the first ever radar map showing the surface of Venus. Venus has got very thick atmosphere, and because of that, normal optical telescope cannot give much desired output, and hence radio telescopes, means Arecibo Observatory, was the first to give the detailed analysis of Venus surface. This discovery led to prospect that it may even be possible to map the surface of Venus at resolution down to 2 kilometers. Now you will be shocked to know that probably when we talk about resolution in telescope, when we observe the things, it is in millimeter and even lesser than that. Now when we are talking about some distant planet which is of the same size like Earth, and we are just trying to map its surface, मतलब उसके surface की geometry हम समझना चाहते हैं, topography, तो जो रिजोल्यूशन हमको मिल रहा है वो 2 किलोमीटर का है. मतलब 2 किलोमीटर का पैच भी
सही सही हल्का फुल्का समझ में आ जाए, इस तरीके से भी मैपिंग हम कर पाए तो भी चलेगा। मतलब 2 किलोमीटर के अंदर गड्ढे बिड्ढे है तो नहीं समझेगा, पर 2 किलोमीटर के पैच के बीच में कनेक्टिविटी और वो सब ठीक ठाक है, इतना भी समझ में आए तो चलेगा। दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ द Arecibo Observatory, and this requirement made some improvisation in that Arecibo laboratories, camera and other telescope requirements. Will not go into the much detail, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। फिर हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एवर मिली सेकेंड पल्सार। तो इस तरीके से मिली सेकेंड पल्सार को भी ढूंढने का काम अर्सिबो लेबोरेटरी ने 1982 में किया। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। डिस्कवरी ऑफ आइस ऑन द पोल्स ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के पोल्स के ऊपर आइस है, इसके बारे में काफी अनुमान लगाया गया है, बट दिस वाज एक्चुअली इनिशियली detected water on the north and south of the Mercury closest to Sun over 2 decades earlier in 1990। ये सब अर्सिबो ऑब्जर्वेटरी के कारनामे हैं, जिसका डायमीटर बहुत बड़ा था और वो तकरीबन 1963 से लेकर 2016 तक ह्यूमैनिटी के रेस में सबसे बड़ा सिंगल एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप रहा। सो नाउ वी गो टू द सम जनरल टर्म्स। जैसे आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में मैं बोलता रहता हूँ। राइट एसेंशन, द सेलेस्टियल इक्विवेलेंट ऑफ अर्थ लॉन्जिट्यूड, जिसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज हम पूरे सेलेस्टियल स्फेयर का नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाएंगे और वर्टिकल लाइंस खींचेंगे लॉन्जिट्यूड की तरह, तो हम उसको बोलेंगे राइट एसेंशन। अभी राइट एसेंशन इन मीटियोर एस्ट्रोनॉमी, इन जनरल एस्ट्रोनॉमी, ये सब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है। अपने मामले में जहां तक हम बात करेंगे राइट एसेंशन टर्मिनोलॉजी इन ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, देन सिंपली द स्काई फॉर फुल 360 डिग्री एंडिंग इन ईस्टर्न पेगासस। एक पेगासिक्स नाम की कॉन्स्टिलेशन है जो जुड़ी हुई है एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन के साथ। इसमें राइट एसेंशन इज हैंडल्ड एज अ टाइम मेजर। It takes 24 hours for Earth to rotate, so sky is divided into 24 hours wide bands, and each hour is obviously 360 degree divided by 24, that is 15 degrees. Declination is celestial equivalent of latitude, and the celestial equator is 0 degrees, while the celestial north and south poles are 90 degree plus and 90 degree minus. Perihelion, perihelion and aphelion. The perihelion is the distance in an orbit when an object is closest to the sun. Aphelion is the distance when the object is the farthest from the sun. Normally, it is measured in terms of the astronomical unit. Now, there is something called apparent size of the object in the sky, or the distance between two objects are measured in terms of the angles. Like we have already seen in our first 2-3 lectures, that index finger held at arm's length spans around 1 degree. Fist is around 10 degree. Fist with a thumb up is around 15 to 16 degree. Aperture is the diameter of any viewing object. Like telescope की बात करें तो telescope का diameter is called its aperture. Asterism is any prominent star pattern, whole constellation such as Northern Cross or Big Dipper or Pegasus, whatever. Now there is something asteroid we have discussed in detail last time. Averted vision is a viewing on object. Normally आप अगर ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी देखेंगे तो जब स्टार गेजिंग अगर आप करते हो तो कभी कभी हमको इमीडिएटली 4 तारों का पैटर्न है तो हमको 3 ही दिखेंगे, चौथा दिख ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लेसर मैग्नीट्यूड और समथिंग ब्राइट लेसर ब्राइटनेस। तो ऐसे में viewing an object by looking slightly to its side, this technique can help you to detect faint objects that are invisible when you stare directly at them. This is called averted vision. एक फिनोमिना है, जब आप प्रैक्टिकली मुझे मिलेंगे तब आपको मुझे ये पूछना है कि सर वो अवर्टेड विजन प्रैक्टिकली हमको दिखा दीजिए। बार्लो लेंस एक अटैचमेंट है जो आईपीस के साथ टेलीस्कोप में लगती है, जिससे मैग्निफिकेशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज अ लेंस दैट प्लेस्ड इन अ फोकसिंग ट्यूब ऑफ द आईपीस effectively double or triple telescope focal length.
फोकल लेंथ डबल ट्रिपल करने के कारण मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है। अभी जो बच्चे थर्ड फोर्थ सिक्स स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड के हैं, इनको ये चीजें समझने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, बट जो बड़े हैं उनको ये फोकल लेंथ टर्मिनोलॉजी वगैरह अच्छे। सर आई हैव बुक दैट टॉक्स अबाउट सिटी। ओके, श्लोक के पास तो बुक ही है, वेरी गुड। सो हैविंग गुड बुक कलेक्शन हेल्प्स यू लॉट। नाउ ब्लैक होल क्या है, तो हमने बताया concentration of mass so dense that everything reaches to the singularity, and because of that even light could not escape the gravitational pull of that particular entity called black hole। ब्लू मून क्या है, ट्रेडिशनली आप ये टर्मिनोलॉजी बहुत सुनते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन वी से ब्लू मून इज नथिंग बट सेकंड फुल मून इन सिंगल कैलेंडर मंथ। सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला कि सेलेस्टियल स्पेयर पकड़ेंगे और उसके ऊपर ग्रिड बना देंगे, तो ग्रिड में लोकेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हम यूज करेंगे उसको सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट बोलेंगे। नॉर्मली वी यूज डिक्लिनेशन एंड राइट असेंशन। तो डिक्लिनेशन राइट असेंशन थोड़ा इंटरनेट पे समझने की कोशिश करिए। Circumpolar denotes an object near celestial pole that never dips below the horizon as Earth rotates and thus does not rise or set। अभी आप मुझे खुद समझाइए कि circumpolar object near the celestial pole that never dips below the horizon, तो हमारे लिए कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कभी भी डिप नहीं करते हॉराइजन के नीचे। मुंबई वाले लोग कौन से लेटीट्यूड पे हैं, लिखिए जरा चैट बॉक्स में, व्हाट इज अवर लेटीट्यूड। चलो जल्दी लिखो, व्हाट इज लेटीट्यूड फॉर मुंबई। औरंगाबाद भी चलेगा, चलेगा चलेगा, जो भी आप लिखेंगे। कोई लिख ही नहीं रहा है, सो गए लगता है। तो वी आर 19 डिग्री, तो नॉर्थ से 19 डिग्री के आसपास जो भी है, जैसे हमको नॉर्थ पोल ही 19 डिग्री पे दिख रहा है, तो नॉर्थ पोल के आसपास 19 डिग्री पे जो भी है वो सारी चीजें कभी भी सेट नहीं होती। सिर्फ हमको दिखती नहीं ड्यूरिंग सनी डे, बिकॉज सन के कारण वहां के स्टार दिख ही नहीं सकते। तो ये आज की कुछ टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी। ये पैटर्न तो आपने हमेशा ही देखा है। तो श्लोक ने अपना लेटीट्यूड बता दिया, सूर्य नारायण पाल बताया आई डोंट नो सर। ठीक है ठीक है, ये ओके। सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पेगासस, क्या ये आपको ठीक से विजिबल है? जरा दिखाइए मुझे आप, कैसा विजिबल? ओके, दिखता है ठीक से। मैं दूसरा भी ये खोला हुआ है। क्या नो सर, जूम करके देखो श्लोक। आप थोड़ा जूम करेंगे ना स्क्रीन को, तो आपको ऑटोमेटिक, अभी जैसे ये स्क्रीन है मेरा, इस स्क्रीन को ही अगर आप ठीक से जूम करेंगे तो आपको ही खुद को दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। देखिए पेगासस, इट्स रीडेबल। ओके, मैंने ये आपके लिए बड़ा कर दिया, अभी आपको ये रीडेबल है। ये मैं इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैं अभी इसको मूव कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने कुछ चीजें पढ़ी जिसका नाम था एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन, जो यहाँ है आपके स्क्रीन के सेंटर। इस बार हम जाएंगे पाइसिस ऑस्ट्रिनस में, जो आपके स्क्रीन के सेंटर में। फिर उसी के बगल में आपको दिखेगा एक्वेरियस। तो ये दो चीजें आपके स्क्रीन में 100% अच्छे से अभी दिख रही होंगी। तो ये चीज अभी भी आसमान में है। सोने के पहले अगर आप खुली जगह पे जाएंगे तो आपको ये चीज अच्छे से दिखेगी, कॉल्ड पाइसिस ऑस्ट्रनस। पाइसिस ऑस्ट्रनस जो है, ये पाइसिस ऑस्ट्रनस में एक बहुत ही फेमस तारा है जिसका नाम है पॉप। ओके, तो हम उसको देखेंगे। ये है पाइसिस ऑस्ट्रनस, जिस कॉन्स्टिलेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले। थोड़ा भागता है मेरा स्क्रीन। ये अभी ये तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें ये चीज जो है, ये कॉन्स्टिलेशन में एक ही तारा अच्छे से विजिबल है। और इस तारे के बारे में और इस कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानने के पहले हम जानेंगे कि ये सदर्न हेमिस्फेयर वाला कॉन्स्टिलेशन है। उसके और साउथ में स्क्रप्टर है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये जो आधा हिस्सा दिख रहा है अभी स्क्रीन में, वो एक्वेरियस है। इस तरफ कैप्रिकॉनस है, इस तरफ माइक्रोस्कोपियम है, और नीचे क्रस है।
तो इन सबको आपको हल्का फुल्का बार बार याद रखना है, ताकि जब आपको किसी को एक्सप्लेन करना होगा तो ये फॉर्मल हॉट, सॉरी मैं पाहो बोला करते थे, तो ये फॉर्मल हॉट है। और इसमें आपको दिखाया कि द ओनली अल्फा इज ब्राइट इनफ टू बी विजिबल, और आप देख रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड, उसका काला सर्कल जो है वो काफी बड़ा दिखा है। बाकी एप्सिलॉन है, डेल्टा है, गामा है, बीटा है, म्यू है, आयोटा है, ये सारे स्टार्स इतने अच्छे से विजिबल नहीं है। सो वी गो इनटू द पाइसेस कॉन्स्टिलेशन। आपको पढ़ने में हो ना हो, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सुना देता हूँ इसकी जानकारी, ताकि आपको एक आइडिया आए कि एग्जैक्टली exactly जब आप पाइसिस ऑस्ट्रिनस देखते हो तो आपको क्या समझना। ओके, लेट्स कम टू दिस कॉन्स्टिलेशन पाइसिस ऑस्ट्रिनस इज सदर्न फिश। दूसरे फिश कौन से हैं आसमान में, स्काई में? दूसरे फिश है पाइसिस। पाइसिस मतलब मीन, मतलब मत्स्य, मतलब मासा। और ये जो फिश है, ये दो फिश एक दूसरे की पूंछ बांध के खड़े हैं, दैट इज पाइसिस ऑस्ट्रिनस। और वो कहाँ है? वो यहाँ जो हमने अभी ये देखा, इसमें देखिए ये पाइसिस और पाइसिस है। ये जो आप पाइसिस देख रहे हैं आपके स्क्रीन में, ये दो फिश है। और ये पाइसिस ऑस्ट्रिनस क्या है? एक फिश। तो ये एक फिश वाली कॉन्स्टिलेशन को आज हम देखेंगे। इसका जो विजिबल लैटिट्यूड साउथ ऑफ 53 डिग्री, जुलाई से सितंबर के बीच में अच्छे से दिखता है। बहुत ही छोटा कॉन्स्टिलेशन है, तकरीबन 245 स्क्वायर डिग्री आसमान में कवर करता है। एंड साइज 88 कॉन्स्टिलेशन में 60th है। और इसका बॉर्डरिंग में कौन कौन है? कैप्रिकॉनस है, ओके, माइक्रोस्कोपियम है, ग्रस है, क्लप्टर है ना, एक्वेरियस नॉर्थ है, जिसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। पाइसेस सस्टेनस इज वन ऑफ द 48 कॉन्स्टिलेशन। ये बहुत पुराना कॉन्स्टिलेशन है। जो टॉलेमी नाम के महाशय थे, उन्होंने 2nd सेंचुरी बीसी में उसको बनाया। उनका एक बहुत फेमस डाइजेस्ट भी बनाया था, उन्हें स्टार कैटलॉग भी बनाया था, जिसका नाम था अल्माजेस्ट। तो अल्माजेस्ट के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे कभी तो। नाउ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, Pisces australis until the 20th century it was known as the Pisces notius. In 16th century Dutch astronomer Petrus plus Plancius removed some of the stars to form the constellation Grus. मतलब ग्रस को सेपरेट किया गया, और फिर फाइनली पाइसिस ऑस्ट्रिनस हैज बीन seen as a constellation since ancient Babylonian times. बेबीलियंस का अपना एक माइथोलॉजी था। इन ग्रीक माइथोलॉजी इट वाज नोन एज a great fish, okay, and portrayed as a drinking the water that was being poured out from the aquarius. aquarius का मतलब आपको मालूम होगा, मराठी हिंदी में इसको कुंभ राशि बोला जाता है। तो ये कुंभ राशि के कुंभ में से जो पानी निकल रहा है, उसको पीने का काम ये ग्रेट फिश पाइसिस ऑस्ट्रेनस कर रहा है। इजिप्शियन माइथोलॉजी, द फिश सेव द लाइफ ऑफ द गॉडेस आइसिस। ये आइसिस आजकल वाला आइसिस नहीं है। सी शोड हर ग्रेटिट्यूड बाय प्लेसिंग द फिश इन द हेवंस एज अ कॉन्स्टिलेशन। आसमान में आप अगर ढूंढने जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल हॉट ही दिखेगा। ओके, तो ये फॉर्मल हॉट ढूंढने के लिए सिर्फ साउथ के डायरेक्शन में सेंट जेनिथ की तरफ से जाते हुए साउथ में जाएंगे तो फॉर्मल हॉट आज भी अगर स्काई क्लियर है तो आपको दिखेगा। अभी थोड़े पाइसेस ऑस्ट्रिनस के डिटेल्स देखते हैं। इसके डिटेल्स ये है कि फॉर्मल हॉट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन कॉन्स्टिलेशन and represent the mouth of the fish. It is a blue sub-giant star with a visible magnitude of 1.16. 1.16 काफी ब्राइट होता है। Approximately 25 light years away है हमसे। Second brightest star in constellation is Epsilon Piscis Austrini। ये ऑस्ट्रीनी क्या होता है? या मतलब ये सारी षष्ठी होती है, आपको मालूम नहीं, मुझे अभी हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मराठी में इसको विभक्ति बोला जाता है। तो विभक्ति का जो षष्ठी है, वो षष्ठी का ये बेसिकली प्रत्यय है। तो वो इंग्लिश में इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ऑस्ट्रीनी, ओके, एक्वेरिनी, एक्वेरीज, ऐसा एक्वेरी, ऐसा ऐसे सब लिखा जाता है। तो पाइसेस ऑस्ट्रीनी विद मैग्नीट्यूड ऑफ ओनली 4.18, द सेकंड ब्राइट स्टार। ओके, ड्वार्फ स्टार है, लाइज 744 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम सोलर सिस्टम। बाकी लोगों की बात ना करे तो बेहतर होगा।
Pisces Sostinus contains no Messier object. It does, however, contains few interesting deep sky objects. They are extremely dim galaxies and will not be visible by our own telescope, which are in the range of 5-6 inches. तो यहाँ सिर्फ जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए चित्र वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक डीप स्काई ऑब्जेक्ट है, कोई गैलेक्सी है, तो वो गैलेक्सी इज बेसिकली 7314 सेफर्ड स्पाइरल गैलेक्सी, और एक ट्रियो है, तीन गैलेक्सी साथ में है, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी, दैट इज एनजीसी, न्यू जनरल कैटलॉग आइडेंटिफिकेशन 7173। ये राइट वाला पिक्चर। तो ये दो डीप स्काई ऑब्जेक्ट है पाइसेस ऑस्ट्रिनस में। अभी हम पाइसेस ऑस्ट्रिनस कॉन्स्टिलेशन के बारे में थोड़े डिटेल जानते हैं। Pisces Australis, the southern constellation, lies south of the Aquarius and is highest in evening in the month around August. अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में थोड़ा बहुत दिखेगा, दिखना है तो थोड़ा अर्ली टाइम पे। Representing fish, it is rather easier to spot than the northern fish since its brightest star Fomalhaut. Fomalhaut इतना ब्राइट है कि आपका नॉर्दर्न फिश जो है पाइसिस, उससे भी ज्यादा इजीली आपको पाइसिस ऑस्ट्रिनस और फॉर्मलहॉट के कारण दिख सकता है। पाइसिस ऑस्ट्रिनस हैज नो अदर प्रोमिनेंट स्टार, ये हमने पढ़ा। According to various account stories, southern fish may be the parent of the two northern fish and may have rescued Syrian fertility goddess Derceto when she fell into lake. अभी इनके रिलेटेड हर स्टोरी बताना मतलब विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग, तो आप इनसे रिलेटेड स्टोरीज खुद ट्रेस कर सकते हो। और जब मैं होमवर्क देता हूँ कि आपको आज जो हमने पढ़ा उसका एक समरी और हर कॉन्स्टिलेशन के डिटेल्स देने हैं, तो आपको इंटरनेट पे ढूंढ के अच्छा खासा एक फुल के पेपर के डिटेल्स ढूंढने हैं। ऐसे नहीं कि 4 लाइन लिख दिया। 6 स्टैंडर्ड का बच्चा अगर 4 लाइन लिख के भेजता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ये क्लास कर रहा है, कोई इंटरेस्ट है नहीं। ओके, तो इंटरेस्ट लेना चालू कर दो, नहीं तो क्लास छोड़ दो। Like the northern fish, Pisces Austrinus almost certainly the Babylon rather than Greek origin. Sky area 0.6% of the sky, 245 हमने बताया था। मेसियर ऑब्जेक्ट है नहीं, ग्लैडवेल ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और नेबर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बताया। Now we have finished till date only two constellation. One is Andromeda. Then we went to the Pisces Austrinus. Today we are covering third constellation called Aquarius, which is one sunshine as it happens to appear on the ecliptic. Sun, moon और wanderers के path पे ये आता है, तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो अगर आप सुनना समझना चाहते हो तो मजा तो आएगा, बट सच पूछिए तो एक्वेरियस आसमान में देखने के लिए आपको एक्सपर्ट साथ होना जरूरी है, जो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी रेयरली ही ये कॉन्स्टिलेशन के कुछ तारे, जब मेरे साथ कोई एक्सपर्ट थे नेहरू प्लानिटरियम के, उनके साथ देखी है। तो ये सब हमारी कंबाइंड एफर्ट्स होंगे कि हम इसको अच्छे से देख पाए, अगर हम अच्छी जगह पे बाद में ग्रुप बना के कोरोना पेंडेमिक के बाद जा पाए। नाउ लेट्स गेट इनटू दिस। ये आप देख रहे हैं चित्र, एक आदमी है, उसके पास एक कुंभ है, मतलब एक जल का स्रोत है, और उससे वो पानी पोर कर रहा है। इनके बारे में बहुत सारी स्टोरी। एक गनीमीड नाम का कोई शेफर्ड था, जिसको कोई ज्यूस, मतलब जो भगवान है उनके यूरोप के माइथोलॉजी के हिसाब से, अपने यहाँ जैसे इंद्र भगवान है वैसे देवों का राजा, वो उनको उठा के लेके गया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। तो उसमें से ये जो है, इस कॉन्स्टिलेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। एक स्कैट नाम का तारा है, टाउ टाउ एक्वेरियस है, लैम्बडा एक्वेरियस है, फिर ऊपर जाएंगे तो सदै चिबा है, देन सदल मलिक है, देन सदल सुद है, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं सैटर्न नेब्यूला, यहाँ पे ही अल्बानी है। तो ये उसके तारे हैं जो दिखना थोड़ा मुश्किल होता है, बट है। यहाँ हम कैप्रिकॉनस के बारे में इमीडिएटली नहीं जाएंगे, और जबकि नीचे पाइसेस ऑस्ट्रेनस है, तो आपको जैसे मैंने बताया फॉर्मल हट उस फिश के आँख का तारा है, तो इंडिकेट थिंग। अभी आप, हाँ बोलिए, किसी ने माइक ऑन किया तो थोड़ा फायरिंग सुनने का मूड है तो बोल दीजिए, कौन है ये?
मनीषा सकपाल जी, आप माइक ऑफ ऑफ रखिए, आपका माइक ऐसे ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा, और आपसे रहा नहीं जा रहा है तो यू कैन जस्ट क्विट। इस तरीके की चीजें बार बार सुनी नहीं जाएंगी, भले बच्चे छोटे हैं, पर डिसिप्लिन फॉलो करिए आप लोग। ओके, बेवजह माइक ऑन करेंगे तो अगली बार से माइक ऑन करने का मौका भी नहीं मिलेगा दोस्त। दिस इज दैट पर्टिकुलर, जस्ट फॉर यू टू मेक यू फील कि आसमान में आप जब देखेंगे तो किस तरीके से, किस दिशा में आपको थोड़ा ये झुका हुआ मिलेगा। ये टॉप में जेनिथ पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा। नाउ कम टू दिस पार्ट, ये है आसमान। जो, अगर इसमें हम बात करें तो क्या हम देख रहे हैं, आई जस्ट टेल यू समथिंग। यहाँ पे comments, ये है आपका पेगासस, ये है आपका नॉर्दर्न क्रॉस, ओके, और ये है आपका एक्वेरियस, और ये है आपका पाइसिस ऑस्ट्रिच। मतलब आप एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश, ये सारे तारों में आप देखेंगे, ये एक्विलस है, यहाँ अकीला का अल्टेर है, ओके, ये पेगासस के तारे, इनके कंपैरिजन में आपको एक्वेरियस के तारे बहुत ही फेंट दिखेंगे। तो फेंट जो बहुत तारे हैं, ये आसमान में ढूंढना, देखना, समझना बहुत मुश्किल होता है। तो एनीवेज, जस्ट आपकी जानकारी के लिए है ये। तो अभी आपने यहाँ देखा, हम चलेंगे आगे। यहाँ मैंने उनके नाम लिखे हैं तो इसलिए आपको ये दिखा रहा हूं कि सदल मलिक जो है वो काफी ब्राइट है, सदल सुद काफी ब्राइट है। बट अलबाली की बात करें, अंचा की बात करें, सदन चिको की बात करें, सितुला की बात करें, उदर की बात करें, तो ये स्कैट की बात करें, ये बहुत ही फिबल मतलब फेंट तारे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने हैं हमको। मतलब पकड़िए कि 88 कॉन्स्टिलेशन में हर एक में से 4-5 तारे भी पकड़े तो भी एक 200-400 तारे याद रखने हैं, तो उसके लिए बहुत डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए। मुझे भी ये सारी चीजें आती नहीं, क्योंकि ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं। हॉबी के तौर पे कुछ 100-200 तारे मुझे पता होंगे, बट आपको अगर 300-400 तारे पता होंगे तो आपको एक लाइफ लॉन्ग अच्छा हॉबी और टाइम पास मिल जाएगा। ये है IAUA का मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मैप, जिसमें आपको वो नॉमिनल सिस्टम दिखाई है, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, जीटा, ये सब ग्रीक अल्फाबेट्स के हिसाब से इनको दिखाया। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ मैंने अल्फा दिखाया, और अल्फा है सदल मलिक, तो आपका सदल मलिक काफी ब्राइट है। बीटा है, ओके, फिर एप्सिलॉन है। ये कुछ ब्राइट तारे हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ एक ब्लू लाइन दिखी है और लिखा है उसके इक्लिप्टिक, मतलब ये राशि, ये कॉन्स्टिलेशन इक्लिप्टिक पे आती है, और उसकी वजह से ये सनसाइन है। तो आप देख सकते हैं एक्वेरियस के पहले या बाद में, हम बोलेंगे अगर हम कैलेंडर के हिसाब से जाएंगे तो पाइसिस है, और एक्वेरियस के पहले कैप्रिकॉर्न। अभी ये सब चीजें क्या है वो धीरे धीरे जैसे हम जाएंगे आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार इस राशि चक्र को देख रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है, और मुझे बताना है चैट बॉक्स में कि यहाँ पे आपका एक्वेरियस किधर दिख रहा है, इसके बगल में, या कौन से महीने के बीच में आपको एक्वेरियस दिख रहा है, जल्दी बोलिए। चैट बॉक्स में लिखिए वेरी। सो हु हैज रिटन दिस, सुषमा पाटिल। ओके, तो आपको ये फेब्रुवरी और जनवरी के बीच में दिख रहा है। दिस इज योर एक्वेरियस। दिखा सबको? तो ये एक राशि चक्र जो है, तो उसका एक अपना गलत फंडामेंटल है, बट टेम्परली फॉर योर असम्पशन कि जनवरी टू फरवरी के बीच में सूरज इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन को बैकग्राउंड पे रख के चलता है, तो हम बोलते हैं कि सूरज अभी कुंभ राशि में है। तो अभी हम लोग कौन से महीने में है? दिसंबर। तो कोई मुझे बताएगा इसमें चैट बॉक्स में कि अभी सूरज कौन से राशि में सनशाइन में चल रहा है? जल्दी। श्लोक ने कॉप्रिकॉनस बोला, और कोई कुछ बोलेगा? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। अभी सूरज चल रहा है सैजिटेरियस,
सेगिटेरियस है ना, सेगिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्नस आएगा, फिर कैप्रिकॉर्नस के बाद आएगा आपका एक्वेरियस। एनीवे, लोग बहुत ही इंटरेस्ट से लेक्चर सुन रहा है, ये मुझे बड़ा आनंद दे रहा है कि कुछ लोग तो सुन रहे हैं। आयुष ने, गुरुवेश, गुरुवेश धनु, ओके, गुरुवेश का नाम दिया और गुरुवेश ने रिस्पॉन्ड किया, ये बच्चा भी बड़ा इंटरेस्ट लेता है, वेरी गुड। तो अभी हम एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन के बारे में फटाफट पढ़ेंगे, थोड़ा वक्त होते चला है। एक्वेरियस इज द कॉन्स्टिलेशन ऑफ द ज़ोडिएक बिटवीन कैप्रिकॉर्नस एंड पाइसेस। अभी इसको मराठी में बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक्वेरियस मतलब कुंभ, कैप्रिकॉर्नस मतलब मकर और पाइसेस मतलब मीन राशि। लैटिन वर्ड मीनिंग ऑफ द एक्वेरियस इज वाटर कैरियर। एक्वेरियस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज़ोडिएक एंड इट इज सन्स अपरेंट पाथ पे आती है। इट वाज आउट ऑफ दैट, टॉलेमी ने जो 48 कॉन्स्टिलेशन अल्माजेस नाम के उसके लिटरेचर में लिखे थे, उसके अंदर आते 88 कॉन्स्टिलेशन का भी ये हिस्सा है। अभी इट इज फाउंड इन द रीजन कॉल्ड सी ट्यूब। क्यों सी ट्यूब बोलते हैं इसको? ट्यूब ट्यूब प्रोफ्यूजन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन वाटरी एसोसिएशन। इसके आसपास में जितने भी कॉन्स्टिलेशन है वो पानी से संबंधित है। जैसे सीटस द वेल, ये सीटस वही है जो एंड्रोमेडा को खाने आ रहा था। फिर पाइसिस फिश, एंड देन इरिडेनियस मतलब यमुना नाम की नदी। अपरेंट मैग्नीट्यूड 2.9 है। बेटा एक्वेरिका इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन कॉन्स्टिलेशन। आप बोलेंगे अल्फा ब्राइट होना चाहिए, तो अल्फा बीटा में हमेशा ये थोड़ा इश्यू रहता है, डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्राइटनेस। अभी काफी प्रिसीजन इसमें आ चुका है। Aquarius Gula, the Great One, is the Babylonian star catalog represents the god Aya himself, who is the commonly depicted holding the overflowing vase. Babylonian star figure appears on entailment, stones and cylinders seals from the second millennium. हम बात करें सेकंड बीसी की, इट कंटेन द विंटर सोलस्टिस। अभी विंटर सोलस्टिस क्या है, समर सोलस्टिस क्या है, और ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ब्रॉन्ज एज क्या है तो आपको पता है। इन ओल्ड बॉबिलियन एस्ट्रोनॉमी, एया was the ruler of the southernmost quarter of the sun path, way of Ya, and corresponding to the period of 45 days on either side of the winter solstice. Aquarius was the, एक minute, associated with the destructive flood that Babylonians regularly experienced. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में समझनी होगी। पुराने जमाने में कौन सी कॉन्स्टिलेशन, कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहाँ है और उसकी वजह से कौन से नेचुरल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, बहुत ज्यादा गर्मी होना, या फिर पैंडेमिक नहीं होता था उस जमाने में, इपिडेमिक आता था। तो ये सारी चीजें से कुछ ना कुछ जुड़ा रहता था। जैसे नीचे देखिए, एक्वेरियस वाज एसोसिएटेड विद द एनुअल फ्लड ऑफ द नाइल रिवर। द बैंक्स वेर सेड टू फ्लड व्हेन एक्वेरियस पुट्स इट जार इनटू द रिवर। जैसे ही एक्वेरियस सर पे आ गया तो उसने भाई पानी जो है वो नाइल नदी में छोड़ना चालू कर दिया अपने जार से, तो मतलब अभी नाइल नदी में फ्लडिंग होगा। ऐसे कई सारी चीजें, लिवो से भी इसका कनेक्शन है, तो इसमें बाद में जाएंगे। थोड़ा टेम्परली जान देते हैं कि जो टॉलेमी भाई साहब थे, उन्होंने इतना मेहनत करके जो अल्माजेस नाम का एक लिटरेचर या ग्रंथ बनाया, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। Almagest is a second century Greek language mathematical and astronomical treatise on the apparent motion of the stars and planetary paths written by the Claudius Ptolemy. पीरियड लिखा है आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट 100 to 170. One of the most influential scientific texts of all time. It canonized a geocentric model of the universe. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड सेंचुरी एडी में भी जियोसेंट्रिक मॉडल पे ही लोग काम कर रहे थे, जबकि हेलियोसेंट्रिक मॉडल 14 सेंचुरी और 16 सेंचुरी में डाला गया, बताया गया, और उसके बाद भी साइंटिस्ट लोगों को परेशान किया चर्चेस में और धार्मिक प्लेसेस ने, क्योंकि उनका जो ज्यादा भरोसा था वो जियोसेंट्रिक मॉडल पे था। दैट वाज एक्सेप्टेड फॉर मोर देन 1200 years फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन हेलेनिस्टिक Alexandria in the medieval Byzantine and Islamic worlds, and in Western Europe through the Middle Ages and early Renaissance until the Copernicus. Copernicus 15th century की पैदाश। It is also key source of information about Greek astronomy. तो ये हमने एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ा। तो थोड़ा आगे जाएंगे। In Chinese astronomy, the stream of water flowing from the water jar was depicted as an army of Yulin. The name Yulin means feathers and forest, referring to the
Numerous high light-footed soldiers from the northern reaches of the empire represented by the Sphinx star. In the Greek tradition, constellation comes to represent simply a single phase from its stream poured into the Pisces system. हमने इसके बारे में बात की थी. Next important line is about our Hindu zodiac is likewise Kumbha. Kumbha मतलब water feature. In Greek mythology, Aquarius is the son of Prometheus, who built a ship with his wife Phaera to survive an imminent flood. They sailed for 9 days before washing ashore on Mount Parnos. Aquarius is also sometimes identified with the beautiful Ganymede. मैं इनकी बात कर रहा था. ये गनीमेड नाम के बहुत ही सुंदर दिखने वाले युवा शेफर्ड थे ग्रीक माइथोलॉजी में, सन ऑफ द ट्रोजन किंग ट्रॉस, who has taken to Mount Olympus by Zeus. Zeus कौन है? उनके साइड, अपने साइड का इंद्र, to act as a cup carrier to the god. Neighboring Aquila represents eagle under Zeus command, मतलब Zeus की आज्ञा का फॉलो करते हुए ईगल ने इस गनीमेड को उठाया और उसको आसमान में लेके गए. ऐसा भी माना जाता है कि एक जो ईगल है, अकीला है, ये कोई दूसरा तीसरा नहीं था, तो ज्यूस ही एक डिस्ग्यूस करके मतलब अपना चेहरा बदल के वहां पे आया. तो यह ऐसी जैसी स्टोरीज हिंदू माइथोलॉजी में, इस्लामिक रिलीजन में है, वैसे हर दुनिया के जात धर्म भाषा में है. तो हम बहुत ज्यादा सही नहीं है और हम बहुत ज्यादा गलत नहीं है, ये दिमाग में हमेशा पक्का रखो. There are three major meteor showers that occur from this particular constellation. The Eta star जो है वहां से, फिर डेल्टा, फिर आयोटा. तो Eta Aquarius are the strongest meteor shower radiating from Aquarius. It peaks between 5th and 6th May with a rate approximately 30 meteors per hour. तो आपको समझ में आया कि अभी कौन सा दिन याद रखना है. 5-6 मई को आपको यहाँ से meteor shower दिख सकता है. डेल्टा एक्वेरिटीज भी है, डबल रेडिएट meteor shower that makes peaks on the 29 जुलाई से लेके 6 अगस्त, जब हमारे यहाँ बारिश होती है, तो उसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. आयोटा एक्वेरिटीज इज फेयरली वीक और 6 अगस्त का है, बारिश का मौसम है, उसके बारे में भी ज्यादा जानने की जरूरत है. स्टार्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ज्यादा जाएंगे नहीं. दो ही ब्राइट स्टार है, अल्फा एंड बीटा, और उनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा. एक सदल मलिक है और एक सदल सुद है, और इनकी मैग्नीट्यूड 2.9 के आसपास है. डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 540 लाइट ईयर्स के आसपास है. सदैव चिबा की बात करें, स्कैट की बात करें, अलबाली की बात करें, अंशा की बात करें, ये सारे जो तारे हैं ये थोड़ा दिखाना मुश्किल हो जाता है. लेट्स गो फर्दर. डीप स्काई ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है, ये सब ग्लोब्यूलर क्लस्टर, मतलब जहां तारे इतने डेंस होते हैं कि एक दूसरे से शायद ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से जुड़े भी, एक सिस्टम की तरह चलते. तो ये आपको एनजीसी 7009 दिखाया है. इसके अलावा, नहीं सॉरी, 7009 इज अ सैटर्न नेबुला. ये मेसियर ऑब्जेक्ट 2 है. नीचे वाला मेसियर ऑब्जेक्ट 372 है, और ये जो इस कोने में दिखाया ये 73. तो आपको इनको देखना है. ये सब ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं. जानकारी यहाँ है कि M2 इज कैटेगराइज्ड, कैटलॉग्ड एज एनजीसी 7089. रीच ग्लोबुलर क्लस्टर है, हमसे 37,000 लाइट ईयर्स की दूरी पे है, और उसका मैग्नीट्यूड काफी बढ़िया है. तो एक बाइनोकुलर से आपको थोड़ा सा उसका मजा आ सकता है. Viewable in a small aperture instrument, but a 100 mm aperture telescope is needed to resolve any star. स्टार को इनमें से रिजॉल्व करना है तो आपको कम से कम 4 इंच का टेलीस्कोप लगेगा. M72 भी एनजीसी का 6981 है, बट 9th मैग्नीट्यूड ग्लोबुलर क्लस्टर है, तो नॉर्मली दिखना मुश्किल. M73 भी ओपन क्लस्टर है, हाईली डिस्प्यूटेड स्टेटस है, मतलब इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं. दिस इज इंटरेस्टिंग. ये देख के हम ये और हेलिक्स नेबुला पढ़ने के बाद हम आज का लेक्चर क्लोज कर देंगे. डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स में एक्वेरियस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है सैटर्न नेबुला, क्योंकि ये नेबुला जो है वो सैटर्न की तरह दिखता है. इतना अच्छा कुछ नहीं दिखता है अपने छोटे टेलीस्कोप से, ये बड़े टेलीस्कोप से या हबल टेलीस्कोप से ली गई इमेजेस है. तो आपको देखना ही है, तो पहले देख लीजिए इसको अच्छे से. अभी चले थेरी पे. तो थेरी में ये है कि इसका क्लैडवेल ऑब्जेक्ट नंबर है 55. प्लेनेटरी नेबुला है,
It appears as a greenish yellowish blue in a small amateur telescope discovered by William Herschel in 1782, using telescope as his own design from the England, and was one of the earliest discoveries in sky survey. Nebula was originally a no-mass star that ejected its layer into space, forming the nebula. Nebula मतलब एक cloud basically. The central star is now bright white dwarf star. Apparent magnitude बहुत ही कम है 11.5, and the Saturn nebula gets its name from the superficial resemblance to the planet Saturn with the rings nearly adjoined to the observer. Okay, it was named by the Lord Rosse in 1840. When telescope had improved to point out that Saturn-like shape could be discerned. Saturn nebula is one of the towards 9 rare celestial objects. Important चीज ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड जो आप पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसके चलते ये आपको मैग्नीट्यूड 8 प्लस. Nebula is 1 degree west of the star New Aquarii, and the central portion size is 25 minutes by 17 minutes. आउटर शेल मतलब जो रिंग स्ट्रक्चर है ये एक्सटेंड करता है तकरीबन 41 to 35 मिनट्स. ये सैटर्न नेबुला टेलीस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, आप अपने टेलीस्कोप से देख सकते. दूसरा बढ़िया ऑब्जेक्ट है एक्वेरियस में हेलिक्स नेबुला, एनजीसी 7293, क्लैडवेल 63 है. इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है. इसके बारे में डिस्कवर्ड बाय कार्ल लुडविग हर्डिंग probably before 1824. This object is one of the closest to the earth of all bright planetary nebula. Distance सिर्फ 650 लाइट ईयर का है. It covers 0.25 square degrees, making it also a largest planetary nebula seen from Earth. Because it is so large, it is only viewable as a faint object through, though its fairly indicated magnitude is 6 mag. तो 6 मैग में आप कितना अच्छे से देख सकते हैं ये आपको यहाँ समझ में आ जाएगा. तो ये है हेलिक्स नेबुला. ये बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्ट है जो आप स्काई से देख सकते हैं, स्काई में टेलीस्कोप से देख सकते हैं. तो ये 6 मैग्नीट्यूड का है और ये एक्वेरियस में है जो बहुत ही फेंट स्टार अकोमोडेट करता है. तो ये ऑब्जेक्ट जो टेलीस्कोप जिसके पास है 4-6 इंच का, उससे ढूंढने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली मिलेंगे तब इसके बारे में जानेंगे. आज हम सन को कवर नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें लिखी थी जो हम अगली बार कवर करेंगे लेक्चर नंबर 9 में. आज हमने जो चीजें पढ़ी उसका होमवर्क हल्का सा ये है कि आपको ये कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया, ये एक शॉर्ट नोट लिखना है. पाइसिस ऑस्ट्रिनस और एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन के बारे में और ऑर्सिबो ऑब्जर्वेटरी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है. फाइन डिटेल स्टोरीज लिखने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है. और जिनको ये सब चीज में मन नहीं लगता है वो प्लीज प्लीज क्लास छोड़ दे. ओके, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ऐसे ही आपने ज्वाइन किया, मम्मी डैडी को, बच्चे छोटे हैं सर उनको समझ में नहीं आता, ऐसा 10 बार बताते हैं, पर वो देखते नहीं कि बच्चा अटेंड करता है कि नहीं, होमवर्क करता है कि नहीं. तो इस तरीके के ग्रूमिंग का ग्रूमिंग में मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है. मैं चाहता हूँ कि डिसिप्लिन तरीके से ही सब लोग अटेंड करें. तो जिन लोग को सिस्टमेटिक सिंसियर डेडिकेटेड रहना है वही अटेंड करें, नहीं तो मैं 0 मार्क्स भी दे दूंगा पेपर में. और ये जो सेशनल मार्क्स है वो आपके होम असाइनमेंट के कंप्लीशन पे और क्वालिटी ऑफ द होम असाइनमेंट्स पे आपको दिए जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. वी से हियर गुड नाइट and you can leave the class. Before that, if anybody has got any question, you can please ask me that question in the chat box. चैट बॉक्स में किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए. किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके, टाटा बाय बाय, प्लीज लीव द क्लास.
You can remove people अगर आप है.